जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल श्री राम संकीर्तन जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे My most humble obeisances at all of your lotus feet. Panchakalpatarubhasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय वैष्णव ठाकुर जी की जय श्री प्रभात की जय मुखम करोति वाचाल पंकुम लंकायति गिरियत कृपा Hare Krishna. So thank you very much for joining for today's session. Apologies, we are meeting after 3 weeks, right? But suddenly plan हो गया. We Lord Badrinath called us and no, we had to leave. So almost 1 week हम वहाँ पर थे and इसलिए वो Thursday to Thursday हो गया and we reached late night. So yes, but nevertheless prayed for each one of you over there to Lord Badrinath. We went to Rishikesh also and Haridwar. Yes. So yes, and as many of you were saying, to tell about experience of a Char Dham, Badrinath Dham Yatra. So we'll have a separate session over there. So happy हम discuss करेंगे. Yeah. So now we will discuss about this. We'll continue where we had stood. 1 second. Yes. So we'll continue where we had stopped last time. इसको याद है कहाँ पे किया था हमने? We have the manual also जो हमने भेजा है अभी. Last हमने किया था which part? Almost 3 weeks after 21 days we are meeting today. कहाँ पे किया था last? हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. दंडवत निशा माताजी. माताजी ते भगवंताच्या गार्लँडाचे बी केल्ले ते आम्ही. Yes, महाप्रसाद. हय हय महाप्रसादम केल्ले निर्मल्य बीन कशें करप चरणामृत how we had to take and everything. Yes, thank you. So before that, before beginning with the next session, as always, the same question I'll repeat for all of us. Why we are doing this class, this session, Vaishnav etiquettes, क्यों जरूरी है हमारे लिए वैष्णव सदाचार class? What is the essence of this? Hare Krishna Mataji. Yes, Purva Mataji. Always remember Krishna. Yes. Hello. Always remember Krishna and never forget Krishna.
right? Yeah, I never thought. Yes. Yes, yes. Thank you, thank you. That is the essence. And दूसरी बात की this all sadachar what we will be discussing while listening, it is for us. Okay, first. So we should not be pinpointing to others, and unless you have that, आपको है वो अधिकार आपके ये है. Otherwise, we should not be doing it. We should be following it strictly ourselves. We are nobody to judge other devotees, especially senior devotees कि हम वो ऐसे कैसे कर रहे हैं ये वो. We are nobody. Okay, वो हम अपराध नहीं करना चाहिए. ठीक है. So with this the next part, अभी ये सब हमने किया etiquettes within the temple. So that part we have done. And now we'll go to this next page, page number 17. Those of you who are having that PDF of manual etiquette, तो वो है. So other etiquette, तो हम quickly will go handling sacred items. So this particular ये जो part है बहुत simple सरल है. Just हम जब पढ़ने से actually will understand. So I'll just quickly go for that. Handling sacred items. Okay. First, books, beads, kartal, etc. should not be kept on the floor or in unclean places and should be respected as worshipable paraphernalia. क्योंकि जो भगवान के रिलेटेड जो भी वस्तु है वो पूज्य है बिकॉज दैट वी आर यूजिंग इन कृष्णा सर्विस. तो हमें वो ऐसे कैसे रैंडमली हमें फेंकना नहीं, इधर उधर नीचे डाल दिया, फील लाइक स्लीपिंग तो सो गए नीचे डाल दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए. इवन करताल, करताल इज कौन है? करताल टेकर्स इन द हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में भगवान के चरण में. तो दिस इज बलराम जी, लॉर्ड बलराम जो भी भगवान के सेवा में जो है एक्सपांड होता है, तो बलराम जी उसमें एक्सपांड होते हैं. सो करताल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड बलराम जी. Yeah, we are using for Krishna's service. Lord Balram ji manifest, expands himself. तो it be careful, उनको नीचे नहीं रखना है जमीन पे या ऐसे चपा के रखना. We can keep somewhere on top, और जहाँ पे कपड़ा कपड़े के ऊपर या गले में डाल के, और ऐसे चपा माला भी. One should not touch one's feet to anything sacred or use one's feet to do what could be done with one's head. फॉर एग्जाम्पल डेफिनेटली किसी, जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि किसी को अगर टच किया हमने पैर से बाय मिस्टेक, तो हम उसको हाथ लगा के सर को लगाना चाहिए. बट दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू डिवोटीज ऑल्सो, बट जो अगर भगवान के रिलेटेड जो चीजें हैं उसको अगर पैर लगा, फॉर एग्जाम्पल हारमोनियम, मृदंगा और एनीथिंग, तो उसको पैर अभी हैवी कुछ है तो पैर से लिफ्ट पुश कर रहा है, वो नहीं करना है. भले ही वो निर्जीव है, बट इट इज नॉट लाइक स्पिरिचुअल लाइफ में एवरीथिंग हैज अ सेपरेट उसका व्यक्तिमत्व होता है जो भगवान के प्लेजर के लिए होती है. तो हाथ से ही करना है. पैर अगर लगाया तो सेम थिंग व्हाट वी हैव टू डू इट, राइट. अब करताल बजा रहे हम, गिर गया नीचे, तो फिर सर पे लगाना चाहिए. इवन आफ्टर प्लेइंग वी टुक द सेवा, यूज्ड इट फॉर कृष्णा सर्विस. Then जब खत्म हो गया, then you have to keep it on our head. Thank you for giving us this, helping us to serve the Lord, right? So वो मोड होना चाहिए. The next part, if a sacred object falls to the ground or one's foot touches, one should quickly pick it up and touch it to one's head. One should not step over books, devotees, prasadam, flowers that have been offered to the Lord, or over any sacred articles. Okay, same thing. पैर नहीं लगाना चाहिए. That should be our ये. All sacred articles should be kept in a neat, clean place and handled with care. They should not be tossed about, but carefully handed over from person to person. तो इवन एक्चुअली ना हम ऐसे भी करते हैं कि लाइक many of us having kids, तो हम ऐसे जब कोई बच्चे कपड़े भी अगर थोड़े रखते हैं ना हम फॉर आवर रिलेटिव्स और ऐसे, तो हम किसी डिवोटी का अगर उस महा क्लॉथ अगर पहने, सो वंडरफुल. For Ramanuj also I got lot of maha dresses, from very 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 senior devotees वैसे. So that is I treasured and I passed it on to someone else like that. तो वो करना है. So जो भी हमें ऐसे कुछ मिलता है महा, तो उसको केयरफुली रखना है. बुक से समथिंग, once you are done with it you can pass it on to someone else. तो वो आप दे सकते हो, वो परंपरा चलती रहेगी, वो शेयर कर सकते हैं वैसे. All sacred, yes, sacred items like beads, books, tilak, etc. should not be taken into the bathroom. Definitely, beads, books लेके नहीं जाना है.
अभी कंठी माला नहीं निकालनी चाहिए. ओके, अभी जब ये बोले तो अरे फिर हम वॉशरूम में कैसे जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो. As the same example सूर्य का है, we it is not कि they are going to get अगर बाथरूम में कुछ हुआ तो हमें, yeah, death can come anytime. A few days, some years back, one of my friend only, you know, she went morning, she was going to the washroom and वो bathroom में ही गिर गई सर. She banged her head and she left. Yeah. So we never know. We never know. तो कंठी माला तो कभी नहीं निकालनी. तुलसी महाराज is all powerful. वो सभी कुछ हमें वो clean करेगी, purify करेगी. So at no point we should remove our tulsi mala from our neck. And but bits वगैरह वो रखना है कि वो बाथरूम में रह के तो चपा नहीं करना. So we have to remove that separately and we have to go. हम बैग भी लेके जाते हैं, said last time also कि नो कि वो रखना चाहिए बाहर, give it to somebody and then you can use it after properly washing your hands and feet. फिर one should be very careful in handling pictures of Guru and Krishna. They should be handled with great care and respect. Same thing, photos. हमें ये नहीं करना चाहिए कि फोटो है, डेटीज मेन है, फोटोज तो हम ऐसे डाल देंगे ना. फोटो और भगवान में कोई अंतर नहीं, डेटीज में कोई अंतर नहीं है. वी हैव टू बी केयरफुली हैंडल करना है फोटोज को. Special mention may be made of Harinam chadars. Since the holy name is printed on cloth, it is a sacred object and should not be touched to the floor. हरिनाम चादर ना, जब हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ होता है तो उसका भी केयरफुल कि हम वो नीचे डाल के बैठना नहीं है, ऐसे कवर ऊपर ही फर्स्ट हमें डालते हैं ना अंगवस्त्र जैसे, तो हैव टू बी केयरफुल कि उसको नीचे ना डालें. One should be careful while offering obeisances, means dandavat, that the bead bag in one's hand does not touch the floor. It may be kept aside before offering obeisances. Same thing, मतलब हम जपा करते हैं, गले में रहता है बेड बैग, तो हम जाके दंडवत डाल देंगे तो क्या होगा, पेट के नीचे से आएगा, वो जमीन पे लगेगा, राइट. तो वो नहीं करना चाहिए. इधर इफ यू हैव समबडी यू कैन गिव इट टू दैट पर्सन. जगह कुछ है वहां पे रख सकते हैं टिल द टाइम वी आर ऑफरिंग ऑब्सेंसेस. और नहीं तो ऐसे वो चपा माला है बेड में, वैसे हाथ में ऐसे करके, नहीं तो ऐसे पीछे भी डाल सकते हैं ऐसे ऊपर से, एंड देन यू कैन नाइसली ऑफर ओबिसेंसेस. बट उसको नीचे अगर वी आर सो केयरलेस, राइट, तो वो नहीं होना चाहिए, रखना चाहिए चीजें. एंड सेम थिंग फॉर इवन भगवत गीता और समथिंग, इफ यू हैव समथिंग बुक्स, कोई दिखा तो मुझे दंडवत डाल रहे, बुक्स नीचे रख रहे, नहीं, अच्छे से जगह पे रखना है एंड देन वी कैन ऑफर. One should be very careful in handling deities' paraphernalia like their clothes, jewelry, vessels, etc. For instance, clothes and towels should be nicely folded and kept. The vessels should be placed in a proper place and so on. Yeah. If one touches one's hand to the floor or anything unclean, one should wash hands before touching the deity paraphernalia again. Yeah. So अगर इवन जो महा मिलता है, अगर भगवान के जो डीटीज के जो बर्तन रहते हैं, we should not be washing it just with हमारे जो छोटे बर्तन के जो ब्रश रहता है उससे नहीं, ना कि कुकिंग के जो वेसल है उससे भी नहीं, भगवान के लिए सेपरेट रखना चाहिए. You know that we have to keep separately. वो डीटीज के लिए ही. इवन जो डीटी एरिया जो है वो क्लीन करते हैं, उसको सेम जो पोछा जब मतलब झूठन जो वहाँ पे क्लीन वैसे करनी नहीं चाहिए, उसके लिए अलग रहना चाहिए. या भगवान के लिए पूरा अलग रखना चाहिए. दैट शुड बी द वे. एंड अगर वो करते समय अगर हमने कुछ अनक्लीन जगह पे हाथ लगाया और समथिंग, देन वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स एंड यूज इट. दिस इज सिंपल, जस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जस्ट आई रेड. तो नेक्स्ट, ये हम पार्ट जल्दी कर पाएंगे बिकॉज दिस इज बेसिक, वेरी वेरी बेसिक, ये पढ़ के समझ में आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड. Krishna is not different than his paraphernalia, and treating Krishna's paraphernalia मतलब जो भगवान के connected वस्तु है, paraphernalia मतलब badly means to treat Krishna badly. Okay, भगवान
कृष्णा और उनके जो वस्तुएं है कनेक्टेड, उनमें और कृष्णा में अंतर नहीं है, वेरी बिग स्टेटमेंट, राइट। तो अगर हम वो भगवान की जो वस्तु है, अगर हम उनको सही तरह से उनका आदर नहीं कर रहे, दैट मीन्स हम कृष्णा का भी आदर नहीं कर रहे। नो मैटर हाउ मेनी राउंड्स वी आर चैंटिंग, देयर आर 64 आवर्स और ये, बट अगर इट्स लाइक वी आर एक्चुअली वी आर हमें ना इट्स लाइक मुझे भगवान का फेस चाहिए बट नॉट हिज अदर बॉडी पार्ट्स, पैर नहीं चाहिए और लाइक दैट, सो नहीं करना चाहिए। We have to be conscious at all times that all these different items are not ordinary items, but they are to be used in Krishna's service and therefore worshipable. तो ये जो चीजें है भगवान की, वैष्णव आचार्यों की, वो चीजें हैं, इट सीम्स टू बी सिंपल, लाइक प्लेट हम भी खाते हैं भगवान का प्लेट, पर क्या डिफरेंस है, किसका प्लेट है, राइट। हमारी हमारी में भी सोने की प्लेट है या चांदी की प्लेट है, हम जिससे खा रहे हैं वो सिंपल स्टील की रहेगी, बट डिफरेंस क्या है, किसकी प्लेट है। हाँ, तो वो केयरफुल रहना, वो लेके हम पकड़ेंगे। इट्स लाइक इफ यू गो इन इस्कॉन वृंदावन टेम्पल और द बिग टेम्पल्स इन इस्कॉन, तो जहाँ पे ना प्रभुपाद गए थे वहां पे दे हैव द थिंग्स विच प्रभुपाद हैड यूज्ड, इवन बकेट्स, जो बकेट्स रहता है ना नहाने के, प्रभुपाद ब्रास के यूज करते थे, इज डू नॉट लाइक प्लास्टिक। शिला प्रभुपाद वाज वेरी सभी थे ब्रास के, अच्छा प्लास्टिक डू नॉट लाइक। तो अभी भी वहां पे आप देख पाओगे दोस थिंग्स आर देयर, सच लाइक दैट। ये क्यों बकेट रखा है, इतना बड़ा टेम्पल, ये इस बकेट क्यों रखा है। नॉट जस्ट दैट, प्रभुपाद ने जो शिला प्रभुपाद ने जो यूज किए वो चीजें, टावल हो, चादर हो, वो अभी तक है। एंड जब अगर वो स्लीपर्स, वन टाइम आई वाज जस्ट द अदर डे आई वाज सीइंग श्रुतकीर्ति प्रभु शिला प्रभुपाद पर्सनल सर्वेंट, तो वो ना कहाँ पे गए थे, एक मंदिर में, एंड ही टुक प्रभुपाद स्लीपर्स, जो फ्लाइट में पहने थे प्रभुपाद ने, स्लीपर्स जो क्लॉथ के जैसे रहते हैं ना, तो वो सबको वाड़ा गए थे वो जीवी हमारे गोवर्धनिको विलेज में। एंड वो लेके ऐसे सब ब्रह्मचारी सब ड्यूटीज रुके हैं कि हमारे सर के ऊपर लगाओ। तो कहने की बात है कि सोचने की बात है कि अरे चप्पल कौन सर के ऊपर रखेगा। अगर हमें किसी ने ऐसे थोड़ा टच भी किया तो हम ऐसे देखेंगे ना, छी को किसने टच किया, थोड़ा सा हमारा वो एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। पर यहाँ पे तो हर कोई, हाँ, जिनको लोग वर्शिप करते हैं वो रुके हैं किसी की चप्पल सर के ऊपर लेने के लिए, या क्योंकि ये जब शुद्ध भक्तों की जब हमें उनकी उच्चिष्ट मिलते हैं, उसमें बहुत कृपा मिलती है, सो उनका भक्त पद, जो बोले भक्तों की जो उच्चिष्ट है, उनकी जो रज है, पैरों की जो माटी है, जो उनके पैर धोए हुए पानी है, वो बहुत पावरफुल है, सी। अभी कैसे है वैष्णव एटिकेट्स, इट इज नॉट दैट कि वी हमें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो अब बोल सकते थे क्यों इतना डिटेल में हम चर्चा, दिस इज द 8th क्लास टुडे, राइट। ऑलमोस्ट 10 hours we are discussing about this particular topic and we have many more classes to go. तो बोले क्यों है इतना सब चीजें, हम तो क्या है, जपा किया तो बड़ी बात है, जपा किया, बुक रीडिंग किया, हीरिंग किया, बस है, क्यों है। या इट इज गुड, ऐसा नहीं कि आप वैष्णव एटिकेट्स ना किए तो आप डिवोटी नहीं बनेंगे, तो यू कैन स्टिल चैंट, you can still read and you can still be in आप अपना जो साधना है वो कर सकते हैं, डिवोटी साधका है। पर जब हम वैष्णव सदाचार फॉलो करेंगे सिंसियरली, then we'll become sincere devotees in the eye of Krishna. या वाई, बिकॉज हम सब समझेंगे फिर कैसे हम किसी वैष्णव के साथ डीलिंग करेंगे। डिवोटीज आर वेरी वेरी डियर टू कृष्णा, डेफिनेटली आप हो, बट जो इतने भक्त है सभी ना, जो बहुत कृष्णा के डिवोटी, ही इज वेरी मच कृष्णा बहुत प्रिय है। एंड इफ ही सीज दैट दिस पर्सन, लाइक ये मेरा बच्चा है, वो कर रहा है अपना 16 माला, ये जो कर रहा है अपना 4 अग्रेड प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, कंठी माला पहना कर रहा है, ऑफर प्रसादम खा रहा है, बट देन ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज, तो कैसे लगेगा। हाँ, हाँ, एक बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है बट किसी से बात ही नहीं कर रहा है दूसरे बच्चों से के साथ में, तो कैसे लगेगा।
उन बोलेंगे नहीं, हमें और किसी से मतलब नहीं है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन टू कृष्णा, हमें सिर्फ कृष्णा। भी तो इतना इंस्टाग्राम और क्या क्या यूट्यूब पे सब आते हैं, एवरीबडी कोई भी आके डाल देता है, जिसको टेक्नोलॉजी आता है जो भी है ना फॉलो करते हैं। नॉट एवरीथिंग इज राइट व्हाट दे आर शोइंग। इसलिए भले ही बहुत सारे लेक्चर्स या वीडियोस और ये, हमें प्रॉपर सोर्स में जाना चाहिए। समटाइम्स, मेनी टाइम्स ऐसे वो बहुत एकदम टेक्नोलॉजी यूज किए हुए बहुत अच्छा विजुअल इफेक्ट वगैरह दिखाए हुए वीडियोस रहेंगे, बट इट इज नॉट ऑथेंटिक। बट को भी बेचारा कोई ऐसे रिकॉर्डिंग करके डाल देगा, बट देन प्रॉपर एज इट इज व्हाट भगवत गीता व्हाट गुरु इज टीचिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भक्त तो हम, साधका तो है 16 माला करके, बट अगर हम सच में प्रिय बनना है कृष्णा का, तो वी हैव टू लर्न दिस वैष्णव एटिकेट्स एंड देन बिहेव इट अकॉर्डिंगली, या विद वैष्णव सोसाइटी, then will become very favorite of Krishna. Yeah, I hope everyone wants to become favorite of Krishna. Is it? Yeah. तो इसलिए वैष्णव एटिकेट, और ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। Just hearing one little quote of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, he was saying about Vaishnava etiquette is very, very important. We have to take it very seriously. Maharaj was saying. Why? Because Chaitanya Mahaprabhu himself was teaching it. तो कौन है चैतन्य महाप्रभु? कॉम्बिनेशन ऑफ कृष्णा एंड राधा रानी। तो फिर तो ही हिमसेल्फ इज प्रोपगेटिंग, तो हु आर वी कि हमें नहीं, हमें डायरेक्ट कृष्णा चाहिए। कृष्णा स्वयं बोल रहे जो इतना प्रेम से भरे श्रीमती राधा रानी के मूड में, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही वो सिंपल दिखती है चीजें, बट समटाइम अरे हमें पता है, लाइक आई जस्ट गो नाउ विल बी स्पीकिंग ऑन पर्सनल हैबिट, द नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट। अभी ये तो हो गया कि वी हैव टू, जो भी भगवान के रिलेटेड चीजें हैं हमें उनको पैर नहीं लगाना चाहिए, उसको अच्छे से केयर करना चाहिए, या विद दैट वी हैव टू डू। Next is personal habit. So now personal habit also I'll just read it, because ये भी most of the things I assume it we are doing it, कि हमें हमारा वो कल्चर ही है, हमारे बचपन से हमारे घर वालों ने हमें सिखाया है। बट अब बोले कि क्यों लिखा है इस मैनुअल में, ये तो एज अ एज अ नॉर्मल ह्यूमन भी सबको आता है। मुझे भी ऐसा लगता था, राइट? बट ऐसा नहीं है, नॉट एवरीवन नोज, राइट? क्योंकि सबका कल्चर अलग अलग होता है। लाइक हाउ वी आर स्टेइंग, अभी बोले कि वेस्टर्न में करो, वेस्टर्न कल्चर अलग है, तो हमारे लिए क्यों इंडियन में क्यों वहां पे लिखना चाहिए ओनली फॉर वेस्टर्नर्स? बट नो, मोर देन वेस्टर्नर वी नीडेड कि हमारे जैसा अभी कल्चर चल रहा है, व्हाट वी आर डूइंग इट। आई एम नॉट सेइंग पेरेंट्स टू बी ब्लेम, बट देन हम भी कहाँ सुनते हैं, राइट? इट्स नॉट रिक्वायर्ड, जो भी है ना वो बेड टी का है ना, बेड के फर्स्ट टी पी के हम जाएंगे, लाइक दैट। तो वो सब चीजें हो रही है। एंड इवन वन डे एक्चुअली आई हैड गॉन टू अ डिवोटीज हाउस एंड हमें प्रसाद हम पा रहे थे, एंड देन वन ऑफ द पर्सन, नॉट डिवोटी बट उनके घर से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके ही हैड प्रसाद, उनको और कुछ चीजें चाहिए थी, वो खा रहे थे उसी हाथ से, उठे उसी हाथ से उन्होंने से निकाल के वो डाल दिया। आई सॉ सर कृष्णा व्हाट इज सो कैसे होते थे, कुछ छूटन खाते हैं, शुद्ध भक्तों की झूठन खाएंगे तो हमें उनकी भक्ति मिलेगी, बट ये तो नॉन डिवोटी है। हाँ, उसमें कितने अपराध रहेंगे, और उनका छोटा अगर हमने खा दिया तो हमें क्या होगा, उनके जो नेगेटिव्स है वो हमारे उसमें आ जाएंगे। या इट इज लाइक दैट। तो वैसे है कि ऐसा नहीं है, इट लुक्स टू बी वेरी वेरी सिंपल है, बस रेडियो इतना सिंपल बेसिक, बट देन वी डोंट नो। अभी तो जनरेशन अभी ऐसे कैसे चल रही है कि ना, हाथ धोना है, कुछ टिश्यू से पोंछ गया हो गया, नॉट रिक्वायर्ड, लाइक सो मेनी थिंग्स आर देयर। इसलिए तो कोविड आ गया, कोविड ने सिखाया कि क्लीनिंग होना चाहिए, हाँ वॉश करना चाहिए, बार बार 1-2 मिनट वॉश करना है, सो मेनी थिंग्स हैपन, राइट? अदरवाइज वो दिखाना पड़ता है कृष्ण को कैसे कैसे ना कैसे। Yeah, hopefully you should not be waiting it again for next COVID to happen something more. Yeah, so quickly I'll read personal habits. You can note, you can also, it's there in the screen. And if any of you want to read also, then you can raise your virtual hands so I can tell you. I don't want to waste time. Let me complete more and more things because already 2 weeks हमारा miss हो गया है ना। किसी को read करना है तो हाथ raise कर सकते हैं अपने। So, personal habits. One who is serious about spiritual life should rise early in the morning, preferably before the Brahma Muhurta.
hour, that is 1.5 hour before sunrise. या तो अगर 6 बजे का सनराइज है, 6:30 का रहता है, तो 6:30 तो 5 o'clock या हम उठ सकते, उठना चाहिए उससे पहले, एंड देन वी शुड स्टार्ट चैंटिंग. अभी तो ये हम सभी बोलते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में अगर चाहिए तो जल्दी उठ के करना है, राइट. सो बिकॉज लेट ऑन वी नो हाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट. अगर सुबह हमने 4, 5, 10, 12 राउंड्स किए, जपा किए, एंड वो 4 माला हमने बाकी बाद में रखे, तो वो 4 माला रखने करने के लिए इट बिकम सो डिफिकल्ट. माला इतनी हैवी हो जाती है और माइंड बिकम सो डिस्टर्ब, राइट. सो दैट्स व्हाई इट्स आइडियली वी शुड बी चैंटिंग इन ब्रह्म मुहूर्त. उसमें ये भी है ना कि अगर बोले कि ये भी पर्सनल हैबिट्स बहुत हम रीड करेंगे. एंड अभी कैसे, अभी ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे हैं, या दैट इज बेस्ट थिंग. बट जो आप अगर ऑलरेडी बेस्ट कर रहे हैं, सपोज किसी की आदत है हम 3 बजे उठने की, तो आप 3 बजे से 5 बजे मत उठो, 3 बजे उठो, या एंड देन यू कैन चैंट मोर एंड रीड नाइसली योर लेक्चर, वो कर सकते हो, राइट. तो बेसिक उन्होंने बेसिक दिया है. बट देन डिवोटीज मंगल आरती से पहले अपने 16 माला करता है. आई नो डिवोटीज 4:30 बजे मंगल आरती रहती है, उससे पहले उठ के अपने 16 माला करके मंगल आरती ज्वाइन करते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट 16 माला, और फिर वो भागवतम वगैरह. या तो वैसे भी है. तो हमें ये कम नहीं करना है, हमें इंक्रीज करना है हमारा भक्ति साधना. So it is said in Srimad Bhagavatam 3.2, 20.46, third canto, 20th chapter, 46 verse. Purport में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, the time early in the morning, 1.5 hours before sunrise, is called Brahma Muhurta. During this Brahma Muhurta, spiritual activities are recommended. Spiritual activities performed early in the morning have a greater effect than in any other part of the day. That's true. That's very, very true. Yeah. Even a very sweet way, हमारे कृष्णा माखन चोर वृंदावन से, इट्स साइड है ना, वो वेस्टाचार्य सेज कि जो कृष्णा है ना, वो अर्ली मॉर्निंग ही गोज, बिकॉज सभी लोग सोए होते हैं गोपियर अर्ली मॉर्निंग. तो अर्ली मॉर्निंग उठ के वो चाहते थे किसके किसके घर का माखन खाएंगे. Yeah. So he sees whoever is chanting, is taking his name, he'll come to that house, person's house. And हमारे जो हृदय है, चैंटिंग करी करके बहुत हार्ड है अभी, फ्रिज में रखा हो एकदम हार्ड बटर है, अमूल बटर, राइट. तो जब हम जपा करेंगे, साधना करेंगे अच्छे से, भक्तों से अच्छा व्यवहार करेंगे, सेवा करेंगे अकॉर्डिंग टू गुरु एंड शास्त्र, शास्त्र पठन करेंगे, तो हमारा जो एकदम हार्ड हार्ट है वो सॉफ्ट बनते रहेगा. एंड इट शुड बिकम दैट सॉफ्ट, एकदम फ्रेशली चर्न, जैसे यशोदा मैया चर्न करती थी या करती है. एंड देन कृष्णा विल कम एंड वन डे ही विल स्टील आवर मक्खन. या सो यस, राइट. इसलिए अर्ली मॉर्निंग इज आइडियल. आगे बोलते हैं आफ्टर, दिस इज बेसिक, बट आप बोले कि क्यों लिखा है, बट यस बिकॉज करते नहीं है लोग, इसलिए. आफ्टर वेकिंग अप, फर्स्ट ब्रश योर टीथ. अब बोलना पड़ रहा है कि आगे इतना कलयुग ये होगा कि कोई ब्रश भी नहीं करेगा, इसलिए बोला है यहाँ पे आफ्टर वेकिंग अप फर्स्ट ब्रश योर टीथ, क्योंकि नहीं करते, सच में नहीं करते लोग. One should then bathe in cold water and after wearing fresh clothes begin the day sadhana. अभी cold water मतलब अगर ऐसा कि अपने हेल्थ के अकॉर्डिंगली कोल्ड वाटर, वाई बिकॉज अच्छा गरम गरम पानी नहाया है तो हमें फिर भी नींद आती है. ठंडा पानी एकदम सडनली पड़ा तो ना विल बी लाइक कॉन्शियस, फिर हम नींद चली जाएगी. बट देन अकॉर्डिंगली हेल्थ के हिसाब से करना चाहिए. कोल्ड वाटर नहीं, जो अपना नॉर्मल जो अपना है वो कर सकते हैं, एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम. Important is taking bath. Okay, and after wearing fresh clothes, begin the day's sadhana. और ऐसा ये नहीं कि हमें सिर्फ मंदिर में ही अच्छे कपड़े साड़ी ऐसे डाल के जाना है, तिलक वगैरह लाके सुबह उठ के ऐसे ही बैठेंगे. नो, बिकॉज कृष्णा इज कमिंग राइट अर्ली मॉर्निंग एंड इज कमिंग टू स्टील आवर मक्खन फ्रॉम हार्ट, राइट. तो इज कमिंग टू मीट. तो कृष्णा मिलने लगेंगे, हम कृष्णा को बुला रहे हैं ना जपा करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो कृष्णा आएंगे. विना कभी हमने अच्छे से शुद्ध नाम लिया तो दौड़ के आएंगे, और फिर हम ऐसे कैसे भी उनके सामने हैं, कैसा लगेगा. तो अच्छे से वी हैव टू बी वेयरिंग तिलक, नाइस फ्रेश क्लोथ्स एंड चैंट, स्टार्ट आवर चैंटिंग.
बाथ शुड बी टेकन आफ्टर, अभी कब कब नहाना है बोल रहे हैं वो, लिखा है राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, उठने के बाद में लॉन्ग नैप्स ऑफ मोर देन एन आवर, जब 1 घंटे से ज्यादा हम सोए हैं तो आइडियली वी शुड टेक अ क्विक बाथ। बाथ मतलब क्या है, ऐसे पूरा सब ये जो भी है ना, शैम्पू कंडीशनर क्या बॉडी वॉश ये सब चीजें वो सब लगा के नहीं, हाँ वो एक बार दिन में अच्छे से आप कर लो जो भी है, बट बीच में जो स्नान रहता है, बिकॉज कैसे होता है अगर आपने अगर नोटिस किया होगा, जब हमें 1 1.5 2 3 घंटा सोते हैं दिन में 2 घंटा ऐसे, एंड देन आप उठते हो तो पूरा आपको वैसे ही सोया सोया सोया, यू फील सो मच यू नो इग्नोरेंट ओनली, आपको और नींद आएगी और नींद आएगी, यू वोंट बिकम फ्रेश। क्या नॉर्मल शॉर्ट नैप्स ना 10 15 आधे घंटे का 15 20 मिनट का, इट्स लाइक एक्चुअली क्विक, आपको रिवाइव कर देता है। उससे ज्यादा दिन में सोए ना 1 घंटे से ऊपर, तो देन इट इज लाइक आपको वो डल बना देता है, इसलिए वहां पे लिखा है कि यू शुड टेक बाथ, अदरवाइज विल बी वेरी लेजी, विल फील वेरी लेजी। और कब नहाना है, आफ्टर पासिंग स्टूल, मल विसर्जन के बाद हमें नहाना है। और अगर एक्सेसिवली पर्सपायरिंग, बहुत स्वेट आ रहा है, तो फिर नहाना है, क्योंकि ना इट्स लाइक फुल्ली स्वेटेड एंड वहां पे जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, ड्यूटीज का कुछ कर रहे हो तो अच्छा नहीं है ना, गंदगी आएगी ऐसे, सो विल स्मेल स्टिंक। ओनली भगवान का जो ये है पर्सपिरेशन है वही दिव्य है, हमारा नहीं है, तो वे टू टेक बात तभी। और बीइंग कंटेमिनेटेड एनीवे, और दूसरे कोई कंटेमिनेशन है, जैसे मैं किसी क्रिमेटोरियम में गए हो या कैसे, और यू नो वैसे जब चीजें में तो हमें नहाना है, नहाने के बाद ही हमें हमारा जप साधना करना है। पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन, nails should be kept clean and clipped short, nail clipping should be thrown in the dustbin। वो क्यों बोला ना, क्यों बोला, बिकॉज पीपल आर जस्ट, वो आदत होती है ना मुंह में डाल के फिर ऐसे थूक देते हैं, वैसे वैसे नहीं करना, इसलिए बोला है उन्हें डस्टबिन में डालना है। उनको सब पता है, कृष्णा नोज एवरीथिंग, कृष्णा डिवोटीज नोज एवरीथिंग, क्या क्या कर सकते हैं हम, कलयुग क्या क्या और यू नो प्रोग्रेस होने वाला है। Srila Rupa Goswami Path even mentions that one should carefully clean one's teeth properly and regularly। देखो रूपा गोस्वामी पाठ, हम रूपानुगा से ना फॉलोवर्स रूपा गोस्वामी तो बोलते हैं टीथ भी बहुत अच्छे से क्लीन करना है हमें रेगुलरली। हैंड्स एंड लेग्स should be washed after passing water, and hands should be washed properly with soap after passing stool। cleanliness के ऊपर है वो, personal hygiene। Brahmana initiates should wrap their sacred threads around their right ear while using the toilet। तो जो ब्राह्मण दीक्षित जो डिवोटीज है उनको ऑलरेडी पता है, तो वैष्णव टिकट्स नहीं हो तो कैसे वो ब्राह्मण बन जाएंगे ना, तो उनको एक वॉशरूम में जा ऐसे नहीं जा सकते, जनेऊ रहता है उनको राइट ईयर में डालना होता है, अगर वो भूल गए तो फिर से चेंज कराना पड़ता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ब्राह्मण इनिशिएशन। यस, ओनली द राइट हैंड शुड बी यूज्ड फॉर ईटिंग, चैंटिंग ऑन द बीट्स, ऑफरिंग समथिंग, एक्सेप्टिंग समथिंग एक्सेट्रा। तो बहुत सारे थोड़े लोग तो लेफ्टी होते हैं तो लेफ्ट से जपा करेंगे, बट नहीं, लेफ्ट भी वी शुड स्टार्ट चैंटिंग बाय राइट हैंड। प्रयास करना है, क्या प्रयास करना है, वो सारे लेफ्टी करूंगा, वी हैव टू ट्राई बाद में आदत हो जाएगी। वी हैव मेनी डिवोटीज हु आर लेफ्टिस्ट प्रीवियसली, बट एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर सीनियर्स they started doing it and now they are chanting through right hands। Okay, wash hands, feet and mouth before and after honoring prasadam। yes, हाथ पैर धोना है, जो जगह है वो क्लीन करनी है। वॉश हैंड्स आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जितना हो सके। क्या, डू नॉट स्पिट व्हाइल ईटिंग, थूकना नहीं है, पानी ऐसे थूकना है, ऐसे ऐसे इधर उधर थूकना नहीं है, मतलब सेइंग क्लीनलीनेस रखना है, जगह पे करना है। सन्यासी should bathe 3 times a day, गृहस्थास and brahmacharis at least twice a day। मतलब सुबह तो हम नहाते हैं, इवनिंग भी नहाए तो फ्रेश हो जाता है, बट इफ somebody is getting cold, सेंसिटिव है पानी के लिए तो ठीक है, दैट्स फाइन, जैसे आपका हेल्थ है वैसे आप देख सकते हैं। bathe after shaving, copulating मतलब मीटिंग जो, और गोइंग टू क्रिमेटोरियम, तो हमें नहाना है, बाल कट किया, शेव किया तो नहाना है, वी शुड नॉट बी विदाउट नहा के फिर वी शुड स्टार्ट आवर डे।
one should take अभी important है हाँ? One should take rest for about 6 to 6.5 hours every night. Too much sleep or too little sleep is not good for our Krishna consciousness. This is also mentioned in Bhagavad Gita, right? कि अभी बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, but to suppose we are sleeping only late 2-3 बजे तो कैसे उठेंगे? Then we will little sleep. We will continue some time, but then we will collapse. There will be some other health issues coming up. तो बट ऐसा नहीं कि सिंपली वी आर उसके नाम पे हम लेट भी उठ रहे हैं, बट हम विदाउट एनी रीजन वी आर स्टेइंग अवेक लेट नाइट, तो वो रॉन्ग है. अगर कुछ रियली देर से हम सेवा है, जन्माष्टमी वी आर देयर कंटिन्यूअस, और कुछ सेवा ऐसे है तो इसलिए है, बाकी देन इट इज ओके. और सम हेल्थ इश्यूज हो गया, कुछ हो गया, तो फिर लेट नाइट है, फिर उसके ऊपर यू शुड टेक अ रेस्ट, ठीक है. बट सिंपली वी शुड नॉट मेक अ हैबिट दैट यू आर सिंपली स्टेइंग लेट, बिकॉज वो फिर वो साइकिल ही हो जाता है, वी आर नेवर आउट ऑफ इट, राइट. तो अगर इमरजेंसी है, लेट है, तो ऐसे नहीं कि वो आदत नहीं करनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं. एटलीस्ट 5-5.5 घंटा, तो यहाँ पे 6-6.5 बोला है, एटलीस्ट 5.5-6 घंटे तो चाहिए, सो दैट वी बिकम नॉर्मल एंड हेल्थी. या सो दैट वी हैव टू टेक केयर. सेम थिंग फॉर टू मच ऑफ ईटिंग एंड टू लेस ऑफ ईटिंग, उसका भी है. तो हमारे वो भी केयर करना है कि हमें बहुत कम नहीं खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, इन बैलेंस. ओके. अगर करना है कुछ ऑस्टेरिटी करना है ना ज्यादा से हमें, तो फिर हमें ज्यादा रीडिंग करना है, ज्यादा हियरिंग करना है, ज्यादा जपा करना है, ज्यादा सेवा करनी है, उसके ऊपर तो अच्छा है. नहीं तो विल बिकम पफ्ड अप कि मैं इतना करता हूँ, ऐसे ये नहीं होना चाहिए. फॉर दैट आई रिमेम्बर एक पास्ट टाइम याद आ रहा है. एक हमारे चौपाटी मंदिर में देयर वाज पांडव निर्जल एकादशी, एंड गुरु महाराज हिज होलीनेस सदानंद स्वामी महाराज, वो ऐसे वो जो कॉरिडोर में वो चल रहे थे, उनके साथ एक डिवोटी थे, एंड एक ब्रह्मचारी थे, और वी है गोविंदास ना हमारे चौप रेस्टोरेंट का प्रसाद में ना पिज्जा दिया है, पता है महाराज ने वहाँ पे मधुवन डोसा, फिर गोलोक एक्सप्रेस पिज्जा, हरिनाम चिंतामणि पिज्जा. देखो धाम से में क्या चाहिए, हरिनाम चिंतामणि पिज्जा, गोलोक एक्सप्रेस पिज्जा, लाइक दैट एवरीथिंग हैज कृष्ण, इट्स रिलेटेड. जो भी डिशेस है वहाँ पे वो रिलेटेड टू कृष्णा है. महाराज हैज पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू दैट स्टैंडर्ड पे लाने के लिए. इवन जो भी वो जो पिज्जा वहाँ पे बनाते हैं, तो स्पेशली जो चीजें थी चाहिए वो अवन बना के लिए उस इटली से लाया था. दे वेंट ओवर द डिवोटीज, वहाँ पे सिखाया उनको, फिर यहाँ पे किया. सो महाराज बोलते हैं लव इज इन डिटेल्स. सो महाराज इज सो मच डिटेल में है. तो एनीवेज तो पांडव निर्जला एकादशी थी, एंड ब्रह्मचारी बोथ वर जा रहे थे. तो और उसमें से आगे से गोविंदास रेस्टोरेंट से एक डोर है बाहर से आने के लिए, और एक डोर से अंदर से आने के लिए गोविंदास रेस्टोरेंट के लिए, मतलब आप मंदिर में पहुंच जाते हो. तो एक गृहस्थ था, वहां पे उन्होंने कुछ एकादशी प्रसादम लिया, एवरीथिंग. एकादशी हमारे इस्कॉन टेम्पल में नॉन एकादशी देते नहीं, ओनली एकादशी. तो इवन एकादशी ऑल्सो इज फीस्ट, राइट. तो जिसको नहीं होता वैसे. तो देन दिस पर्टिकुलर गृहस्थ ही वेंट देयर एंड ही केम डिवोटी, and then देखा ना he was eating. तो this particular devotee was with Maharaj. He said ना, उनको बोलने लगे अरे देखो निर्जला एकादशी है, और ये देखो क्या क्या खा के आ गया, अच्छा अच्छा फास्टिंग किया, feasting feasting kind of. So then Maharaj said a very nice thing. He said uh, he said कि he fasted, this particular devotee he said कि feast, मतलब उन्होंने बोला कि भले ही उन्होंने फास्टिंग वो नहीं करी, बट फीस्टिंग की, शरीर की तरफ से उन्होंने फीस्टिंग की, राइट. एकादशी प्रसाद फीस्टिंग की, बट उन्होंने अपने सेंसेस से फास्टिंग किया. ही वाज कंटिन्यूअसली चैंटिंग, ही स्टेड की बिकॉज़ ऑफ हिज ना ही विल बी स्टेइंग देयर, और देन कंटिन्यूअसली वो नाम जप करेंगे, साथ में पूरा दिन उन्होंने ऑक्यूपाई करेंगे उधर ही. एंड भले ही आपने फिजिकली आपने
फास्टिंग की, या बट आपकी सेंसेस ने फीस्टिंग की क्या? लुक आई एम ग्रेटर देन दैट पर्सन, दैट डिवोटी, आई हैव डन निर्जल, या सो लाइक दैट। सो इट इज, इसलिए बोल रही ना, वी शुड नेवर एवर जज, नेवर एवर। महाराज सो ब्यूटिफुली उन्होंने कैसे, दिस डिवोटी इज बैड, नो, बट ब्यूटीफुली उनको लेसन दिखाया उनके लिए। हाँ, वो कैसे और हम्बल बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्टॉप करना है निर्जल रखना, बट ये बट हमारा कॉन्शियसनेस क्या रखना रहना चाहिए। भले वी आर डूइंग फास्टिंग और फीस्टिंग, बट हमारा कॉन्शियस क्या रहना है वो इम्पोर्टेंट है। यस, सो नेक्स्ट, one should try to sleep on the floor or on a hard surface. Luxurious soft bed should be avoided. तो ये से जैसे अपने हेल्थ इश्यूज कैसे उसके हिसाब से दैट्स फाइन। ओके, टू मच एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दी रहेगी तो फिर उठने को नहीं होता है, देन नाउ यू कैन नॉट स्लीप आल्सो प्रॉपर्ली, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ आल्सो। One should try to, it is best to sleep on one's left side, if not then on back, but never on one's stomach. ये scientific reason भी है उसका। So yes, one should not waste Krishna's energy like soap, toothpaste, electricity, water, etc. One should turn off the lights and fan whenever and wherever they are not required. अभी इसमें कैसे है, जब ये हम पढ़ते हैं, that doesn't mean कि only जो मंदिर में जो चीजें हैं वही कृष्णा की है तो हमें बंद करनी चाहिए। नो, एवरीथिंग इज कृष्णा's प्रॉपर्टी, राइट? हम खुद हमारी कृष्णा की प्रॉपर्टी है। तो जो भी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि घर में हम यूजुअली हम कैसे करते हैं जब बाहर जाते हैं मे बी, तो हम क्या करते हैं, ओ वी हैव पेड दैट होटल, तो हम कुछ भी ऐसे यूज करेंगे पूरा ऑन ही करके रखेंगे, ऐसे कुछ नहीं। एवरीथिंग इज कृष्णा's प्रॉपर्टी, isn't it? तो वी हैव टू टेक केयर, वी शुड नॉट बी वेस्टिंग इट। एवरीबॉडी थिंक्स लाइक दैट, देन कितना अच्छा होगा चीजें, राइट? तो हमें वो वेस्ट नहीं कराना है। वी हैव नॉट मेड इट दैट अमाउंट वाटर व्हाट वी आर गेटिंग, इट इज नॉट दैट, उसका वैल्यू जो हम वाटर बिल पे कर रहे हैं ना वो नहीं है, वो क्या है, पीनट्स। हम बोले कि पानी नहीं मिलेगा तो क्या, आई थिंक राइट समथिंग, दिल्ली में इतना वाटर शॉर्टेज है और अभी बोल रहे थे कि नेक्स्ट जो वॉर होगा, यू नो, इट विल हैपन बिकॉज ऑफ वाटर, पीने का पानी, राइट? सो उसका वैल्यू जो हम पैसे दे रहे हैं ना उससे नहीं होगा। दिस एयर व्हाट वी आर ब्रीथिंग, उसका अगर कृष्णा ने ये किया, बिल बिल बोला पैसे देना पड़े तो क्या करेंगे? विल बी एबल टू पे हिम? हाउ मच, क्या वैल्यू रहेगा उसका? सो नो, we have to be very careful. Everything is of Krishna's property. We have to take care, not just soap, toothpaste, everything, right? तो अच्छे से उसका हम केयर लेना चाहिए। बट उसमें ये भी है, आई रीड दिस अगेन, the next part. One should spend Krishna's money discreetly and with responsibility, asking oneself if this expenditure is really necessary for enhancing Krishna's service, तो यूज करना है। तो इसमें ये है कि जब चीजें हम जो भी स्पेंड भी कर रहे हैं पैसे भी, तो हम ठीक से करने चाहिए भगवान के लिए, तो डेफिनेटली वी शुड बी डूइंग इट, यू नो, जितना हम शुड नॉट बी कीपिंग इट, लॉर्ड ओनली हैज गिवन। तो उसका प्यूरिफिकेशन जब भगवान में देते हैं चैरिटी में, रूपा गोस्वामी पाद कितना बोलते हैं, 50% हमें देना चाहिए हमारी जो आमदनी होती है, हाउ मच वी आर गिविंग, या 50% पद में रखना है वो, राइट? बट एटलीस्ट सम परसेंट वी शुड बी गिविंग, सो दैट जो हम कमा रहे हैं ना, जो उसका वी गेट दैट कर्मास, राइट? तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ना, आई डिस्कस दिस विद डिवोटी ऑफ आवर्स, हमेशा बोलती हूँ कि अगर हम भगवान की सेवा में यूज नहीं करेंगे और डिवोटी की सेवा में यूज नहीं करेंगे किसी अच्छे काम के लिए, तो वो पैसे वो जाना जा ही जाएगा। अगर है ना, एवरी एंटायर लाइफ वी आर स्पेंडिंग सेविंग सो मच ऑफ मनी, एंड देन कुछ डिजीज आ गया तो जो भी सेव किया एवरीथिंग गोज, बेटर वी डू समथिंग। बट डेफिनेटली हमें इमरजेंसी के लिए रखना है, उसमें वो भी है, बुढ़ा को संबाद बोलते हैं कि हमें इमरजेंसी के लिए रखना है हेल्थ के लिए, और बोला है उन्होंने, राइट? बट यू शुड ओवरली, क्योंकि वो जो हमने रखा है ना ऐसे संभाल संभाल के खुद के लिए, और ऐसे फिर वो अगर वो भगवान की सेवा में यूज नहीं करेंगे तो वो चला जाएगा। जैसे बड़ा सा डॉक्टर हमें बिल देंगे, हॉस्पिटल में बिल देंगे, वैसे हो जाता है। बट if you're doing something for Krishna, Krishna takes note of it, yeah, and then he'll say no, इसका नहीं करना है, we won't give him that much, because he is doing this, he or she is doing this, so
It be the same time we should not be कि miser कि अपने खुद के लिए जो चाहिए वो नहीं यूज करना चाहिए. जैसे हम सिर्फ कृष्णा के लिए करेंगे, खुद के लिए कुछ भी नहीं. खुद के लिए एक ही धोती कुर्ता से रहेंगे या उतना एक ही टाइम का खाएंगे प्रसाद, हम कुछ नहीं, राइस दाल उतना ही और कुछ नहीं है. ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए. इट इज लाइक यू आर एक्सप्लॉइटिंग कृष्णा's बॉडी. वो हेल्थ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. एंड देयर सो मेनी थिंग्स, हम अच्छे से नहीं जाएंगे. बेसिक इट्स नॉट कि आई एम सेइंग कि एकदम ब्रांडेड कपड़े और ऐसे और एकदम एवरीडे 56 होगा, ऐसे नहीं. बट देन इफ वी आर नॉट, जो बेसिक हमारे न्यूट्रिशन चाहिए टू बिकम हेल्दी, राइट, वो हम नहीं कर रहे हैं. और जो दूसरे डिवोटीज को भी ना आदत प्रदान करना है, वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू कीप दैट रिलेशनशिप. तो वो भी नहीं कर रहे, देन इट इज ऑफ नो पॉइंट ना. तो वो करना है, जो चाहिए चीजें वो चाहिए, वो बेसिक हमें स्पेंड करनी चाहिए, राइट. तो इट्स 9. um, I think we can take kirtan also today. Yeah, today we take a lot of things ना. 15 मिनट में कर लेंगे, right? We'll do this kirtan part. Shall we? और मैच देखना है. I think there is match today, right? I am happy that Prabhujis are there. और चले गए पता नहीं. I'm seeing Mataji's only. Shall we take kirtan or we'll conclude here? Hari bol. Mataji will take. Let's take Mataji. Okay. Prabhujis है ना, क्या मैच देख रहे हैं? Yeah, we'll take this. Hare Krishna Mataji. Yeah, Let's go for Kirtan Mataji. कीर्तन. अब तो Let's go, कीर्तन अजय. है, तो कीर्तन करेंगे. चलिए, अब सुरेश प्रभु ने बोला है तो करना पड़ेगा. कीर्तनिया है हमारे. ओके, सो कीर्तन एटिकेट्स विल फॉलो. विल टेक दिस पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सभी को फिलोसफी, जो हम आते हैं पहले तो फिलोसफी समझे ना, सब कुछ पता ही नहीं रहता. जो लेक्चर सुन रहे थे ऐसे बाउंसर चले जाते हैं, क्रिकेट लैंग्वेज. But Kirtan is everyone like, Kirtan has so much power that no matter what state we are in, मतलब एकदम कोई भी अलग भाषा का कोई प्राणी आया, कोई भी for that matter, they'll get absorbed in Kirtan, yeah, automatically. That has power because इस कलयुग में युग धर्म है संकीर्तन, right? Like एक एक युग में एक एक भगवान एक तरह से आते हैं. जैसे just because we went to बद्रीनाथ कैसे सतयुग में ना, तो वहाँ पे एकदम तपस्या, लॉर्ड ऑल्सो इज ए तपस्या मोड. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वहाँ पे एक्चुअली भगवान ने वही सिखाया है. वहाँ पे जाना भी रहना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो वैसे अगर हमें बोला आज इसके ऐसे रहना है आपको, ऐसे तपस्या करके पूरा ऑस्ट्रेलिया, तो कहाँ रहेंगे? द्वापर में भी कैसे हो गए, त्रेता में भी वैसे, द्वापर में त्रेता में यज्ञ, फिर द्वापर में सो मेनी थिंग्स, वी कैन नॉट डू दैट. तो इसलिए हमें कलयुग, वी आर एक्चुअली फॉर्चुनेट कि हमें सिंपल मेथड दिया है. वो भी हम अगर गड़बड़ करेंगे, नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा. कीर्तन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कीर्तन इज अ थिंग इन व्हिच वी कैन attract the Lord so easily. I always, when I say the kirtan or chanting, I always remember that beautiful painting of Bilva Mangal Thakur from Vrindavan. वो बैठे हैं एंड ही इज ब्लाइंड ना, वो ब्लाइंड होते हैं. ही हिमसेल्फ फोड़ देते अपने आंखें और वो ऐसे बैठे हैं. एंड देन कृष्णा कम्स एंड देन ऐसे 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 बैठ के वो सुनते हैं स्माइलिंग. सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर. एक्चुअली व्हेन वी चैंट, व्हेन वी सिंग कीर्तन प्रेम से, हृदय से, इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट वी हैव टू बहुत हमें संगीत विशारद होना है, या फिर हमें बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स एवरीथिंग चाहिए. ऑफ कोर्स मंदिर के स्टैंडर्ड के लिए जो भी है वी शुड बी प्रॉपर्ली करना है. बट हम जब अलग सेपरेट है रूम में, हमारे अलग से है, तो जस्ट सिंग इट फॉर लॉर्ड. इट इज फॉर लॉर्ड, नॉट टू शो एनीबडी. या सो लॉर्ड कम्स एंड बिकम्स वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी. Remember that painting? सच में वो बहुत, I'll try to send if it is there, if I get it. But Krishna becomes very happy, very happy. Yeah. So Kirtan, leading Kirtana at a satsang is an honor. So we lead करता है, it's an honor. It is not something very कि हमें अरे वो क्या है, हम इधर भी बड़े बड़े स्टेज पे गाते हैं और इसमें क्या है बड़ी, ये तो 10 ही लोग हैं, ऐसा नहीं है. इट्स एन ऑनर दैट वी आर लीडिंग परंपरा. चैतन्य महाप्रभु में रथ यात्रा चालू है ना, 8 ग्रुप्स थे,
तो 8 ग्रुप, एक एक लीडर थे। तो महाप्रभु इट्स नॉट समथिंग जस्ट किसी को भी अरे ये आप गाओ वो गाओ, ऐसा नहीं है। प्रॉपरली दैट पर्सन विल लीड द एंटायर डिवोटीज एंड ही विल गिव दैट मोड। तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी लीड करता है वो कीर्तन, यू नो, विद दैट मोड से करना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए। So leading Kirtaniya at a Satsanga is an honor as one is representing the whole congregation before the deities. तो पूरे जो कॉन्ग्रेगेशन को लीड कर रहा है वो भगवान के ऑल्टर के सामने करता है ना, तो दैट इज अ बिग ऑनर। सिंपल नहीं है ये, इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग। बहुत हमें कॉन्शियस रहना है, बहुत प्रेम से करना है। आपका जैसे मूड होगा वो बाकी का भी होगा वैसे ही। Therefore one should be conscious of this and lead only when it's asked to. प्रॉपर अब जब हम उसको रेडी हो जाएंगे, हमारे सीनियर को पता चलेगा तभी लीड करना है, नहीं तो नहीं करना है। या ऐसे देन यू कैन स्टार्ट स्मॉल थिंग पर्सनल लेवल पे। वी शुड सिंग ओनली दोज कीर्तन्स व्हिच आर ऑथराइज्ड। ओके, अब ऐसे मैंने बताया बार बार वही हो रहा है कि यूट्यूब पे और इंस्टा पे कोई भी कैसे भी अलग अलग तरह के कीर्तन गाएगा, यू नो, सो मेनी थिंग्स। कीर्तन के नाम पे, भक्ति के नाम पे, जपा के नाम पे, भजन के नाम पे कोई भी करेगा, यू नो, इट्स लाइक फर्स्ट चैप्टर में लिखा है ना भगवत गीता में, प्रभुपाद बोलते हैं कि इट्स लाइक खीर है, वो स्वीट खीर है, बट उसमें एक ड्रॉप अगर बोले कि बहुत कंडेंस खीर है अच्छा स्पेशल, बट उसमें क्या है ना, एक ही ड्रॉप उसमें क्या है, सांप का विष। आप लीजिए, खाओगे क्या? नहीं खाएंगे ना। सो सेम थिंग। सो इफ वी डोंट हैव अ राइट मोड, एक परंपरा में नहीं जाएंगे, भले ही अच्छा एकदम लता बिग सिंगर, बहुत अच्छा वॉइस है हमारा, बड़ा बड़े सिंगर से अच्छा वॉइस है, बट अगर वो डिवोशन नहीं है, इट इज नॉट इन परंपरा, इट इज लाइक द स्वीट कीर्तन, स्वीट खीर, वही हरिनाम गा रहे हैं बट उसमें विष मिलाया हुआ है। तो वी हैव टू बी ऑथराइज कीर्तन जो परंपरा में वही वैसे ही गाने हैं। द प्रेम ध्वनि प्रेयर्स लाइक दैट जय ओम विष्णुपाद परमहंस बोलते हैं ना हम आफ्टर कीर्तन में बोलते हैं दंडवत डालते समय। At the end of the kirtan should be recited by the senior most devotee present. Example sannyasis or Srila Prabhupada disciple. अगर नहीं है then senior devotees, और वो भी नहीं है then level पे देख सकते जो कीर्तन भी कर सकता है। Okay, that Premadhani I'll say na, only the standard Premadhani prayer should be recited except on special occasions like appearance days when the appropriate glorification may be made additionally. तो उसमें है पेज नंबर 37। आई वोंट टेक इट बिकॉज वो थोड़ा डिले हो जाए, बट हम वो हमेशा गाते हैं ना मंगल आरती में। ये है प्रेम ध्वनि, पेज नंबर 37। ये बचे ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत्र श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय बोलते हैं ना। फिर आगे उसका का मीनिंग क्या है, ऑल ग्रेस टू द आचार्य ओम विष्णुपाद 108 त्रिदंडी गोस्वामी एसी भक्ति वेदांत स्वामी Prabhupada, who travels everywhere preaching the glories of Hari and who is situated on the highest platform of sannyasa. By the way, 2 weeks back I had given you all homework सबको कि संसार दावानल का मीनिंग पढ़ना है एंड सेकेंडली महाप्रसाद प्रेयर्स लर्न करना है। ओके, इसका देखो प्रेम ध्वनि जो प्रेयर्स हम गाते हैं, हम सिर्फ जय बोलते हैं, हाँ जय जय जय, पर उसका मीनिंग कितना सुंदर है। सो दिस पर्टिकुलर इज देयर इन द manual. Please try to read it with the meaning. Okay, तो इसको डीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय, ये भी लर्न कर सकते पूरा। तो जय ओम में फिर इसमें एक देखो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि कितने हैं हमारे मंगल आरती कितने कम होते हैं, अनंत कोटि कहाँ है, बट विजिबल में भी 10 होंगे, इनविजिबल कितने होंगे, राइट, देयर इज नो काउंट, राइट। तो एक्चुअली भगवान की कृपा है वो कि वो इनविजिबल होते हैं। एग्जाम्पल, यू नो, हमारे सुनमधुर मैसेज भेजते हैं ना हमारे कि आज कल मंगल आरती आ जाना, प्रसादम रहेगा। तो अगर इतने सब अनंत कोटि आएंगे तो उनका प्रसादम का कैसे करेंगे हम इसलिए वो कम है, तो वो इनविजिबल रूप में आते हैं। विजिबल रूप में 10 लोग वैसे, राइट। सो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जो विजिबल है और इनविजिबल उनको भी दंडवत। सो प्लीज रीड इट, रीलर्न भी कर सकते हैं। सो प्रेम ध्वनि प्रेयर्स बोलते हैं आफ्टर कीर्तन जब हम करते हैं ना, तो उसको फिर या अभी हाँ, और जब कोई अपीयरेंस डे वगैरह होता है तब हम एडिशनल जैसे
जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, नित्यानंद प्रभु आविर्भाव महोत्सव की जय। अदरवाइज हमें नहीं करना है, अदरवाइज स्टैंडर्ड ही जो है अभी लिखा है पीछे तो उतना ही करना है। उसमें ये भी है, I should have taken more. इसमें ये भी है, मे बी नेक्स्ट टाइम थोड़ा और उसमें एडिशनल लेते हैं जब हम शुरू करेंगे ना रिविजन जैसे उसमें। So there are standard melodies to be sung at specific times of the day. In particular, in the morning program, the Samsara prayers and Hare Krishna Mahamantra should be sung in the morning melody. This is very important. The Kirtanya should remember कि जो हमारा जो usual जो pattern है, कैसे है? संसारा धावा नलडिडलो का प्राणाय कारुण्या घना घनात्व, ये स्टैंडर्ड है तो ऐसे ही फॉलो करना चाहिए, यू नो। वी शुड नॉट बी कि मैं अलग करूंगा, ऐसे अलग ऐसे, बिकॉज सेम जो संसार धावानल जो हम गाते हैं ना, बट मंगल आरती में, बट जो दूसरे समय जब हम व्यास पूजा शिला प्रभुपाद का आविर्भाव दिन हो या गुरु महाराज का आविर्भाव दिन के लिए जब हम गाते हैं सेम संसार धारा बट अलग ट्यून में हम गाते हैं, जैसे ना संसार दावा नलडीडलो का प्राणाय कारुण्या घना घनात्वम। सो वही संसार दावा में दिस डिफरेंट टू, दिस इज व्हाट हम ट्रेडिशनली हम करते हैं। डेफिनेटली लाइक ना बहुत सारे अभी चेंजेस हो जाएंगे और आगे भी, बट ये ट्रेडिशनल वे जितना हो सके वी शुड बी स्टिकिंग टू दिस काइंड ऑफ प्रेयर्स, वैसे तो वो चेंज नहीं करना है। मां मंगलाती का वही टोन होता है, दैट पर्टिकुलर वे वी शुड ट्राई टू डू दैट वे ओनली, राइट। अगर नहीं हुआ देन ठीक है, किसी डांटना नहीं ऐसे कैसे किया, इसलिए पहले आप जो सिंगर है उनको बोल सकते कीर्तनिया को बाबा ऐसे ऐसे करना है, एंड आगे जब वो गाते तभी उसको अपराध नहीं करो, बाद में बोल सकते हैं। एंड आगे पता नहीं क्या होगा, बट ऐसे रूल्स चेंजिंग और ऐसे, बट ये स्टैंडर्ड हमारा है, हम ऐसे ही बाकी की सभी जगह पे ऐसे ही फॉलो करते हैं। वी शुड बी ट्राइंग टू फॉलो सच स्टैंडर्ड्स ओनली जितना हो सके। या आगे, कीर्तन should be simple and led in a way that can be followed and repeated easily by congregation. This is most important. जो सभी कीर्तनी है जो कीर्तन गाते हैं वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही मैं बहुत संगीत विशारद तो बड़ी, मुझे बहुत बहुत राग आते हैं जो भी है, and you know this is my opportunity to show my talent to the in front of all congregation, जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो या यू नो फ्राइडे प्रोग्राम सैटरडे प्रोग्राम जगह पे हो, तो मुझे मैं बहुत यू नो हाई पिच लो पिच ये वो गाऊंगा और गाऊंगी, बट देन वी शुड, भले हमें आता है ऐसा सेट कि कीर्तन इज आवर डीप कनेक्शन टू कृष्णा, क्या, and it's good pleasure. But when we're leading the first statement with what we read, we are the kirtaniya leads the congregation, the जो भी है वो भगवान के चरणों में डिटीज के सामने। तो अगर मैं इतने राग से गा रहा हूँ, but the audience is very new, they don't know, वैसे उनको नहीं आएगा आलाप वो सब जो नहीं आएगा, तो वो अलग अलग गाएंगे, तो इट विल चेंज। भले मैं लीड सिंगर बहुत अच्छे से सब कर रही हूँ, but that it won't be giving pleasure to Krishna. बाकी में भी डिवोटी जस्ट सुनेंगे, but they won't be able to repeat it loudly, right? That we can do during कीर्तन मेला से, जब हाई लेवल पे रहता है, जब डिवोटीज भी वैसे कॉन्ग्रेगेशन वैसे रहते हैं ना, तो दे कैन हियर, लाइक हमारे मायापुर में कीर्तन मेला रहता है, तो अलग अलग है, तो उसमें डिवोटीज भी जो बैठे हैं उनको भी आता है, बट यहाँ पे नॉर्मल प्रोग्राम्स में व्हेन वी हैव वेरी न्यू पीपल कमिंग अप, दे डोंट नो महामंत्र प्रॉपर्ली और उनको नहीं आता है, then we should not be using such, try to show our that talent to such crowd. Yeah, because it's big responsibility. First statement, it's a big honor, the kirtaniya is leading the congregation to the deities, right? तो हमें करना है कि हमारा सक्सेस है कि सभी लोग वो ट्यून गा सके, या दैट इज आवर सक्सेस, बाकी सब छोड़ो। शिला प्रभुपाद का कीर्तन कैसा है, that is a tune which is most attracting, most soothing, anybody, most simplest, most anybody and everybody can sing it easily. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simple,
प्रभात, बट यही सिंपल ट्यून उनकी भक्ति है। वो टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में बैठे वहां पे वो झाड़ के सामने करताल लेके सिंपल, नो मृदंगा प्लेयर, नो कुछ जो अभी नया नया इंस्ट्रूमेंट से कुछ भी नहीं है। he just said with this over there, this simple kirtan, yeah, but it attracted everyone. Those hippies what you are seeing, जो उनको they are the best in hippies कैसे रहते थे, बहुत बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, पॉप कल्चर था ना बैंड का, तो they used to play, तो उनको तो इतना, तो ये क्या है, but this simplicity, this pure devotion of Srila Prabhupada, from Srila Prabhupada's heart, which was coming through his, mouth, right? That attracted their hearts, right? So, वही तो I'm not saying we have to sing Prabhupada Kirtan only, but we have to sing a Kirtan in such a way that it is simple Kirtan. Yeah, anybody and everybody, especially this kind of जब generals में करते हैं, everybody can hear it and get attracted, and they can also repeat it. That is success. That is success of Kirtan. Yeah, अगर दूसरे devotees भी वो गा सके, जो बाकी ऑडियंस है वो गा सके, that is success, right? जैसे स्पीकर बहुत बड़े सब संस्कृत विशारद है, बहुत अच्छे संस्कृत में ही बात करे पूरे, तो तालियां बजाएंगे एंड में, वाह 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 वाह, बट समझ में कुछ नहीं आएगा, क्या फायदा है? right? So we have to be conscious about what you, and also हमने कीर्तन में बहुत चेंज करते नहीं रहना है ट्यू। अगर एक हम 15 मिनट का स्लॉट है, पूछना है कितना मिनट का स्लॉट है हमारा, 15 या 20 मिनट का, जो कीर्तन गा रहा है तो हमें बार बार चेंज नहीं करते रहना है ट्यून्स कंटिन्यूअसली, राइट? स्लो किया बाद में फास्ट किया, बस तो एक ही ट्यून से अच्छे से करके वो उसके ऊपर ही मास्टरी करना है, उसको बहुत रिहर्सल करके वी कैन डू दैट कीर्तन एंड फॉलो इट। तो फिर चेंज होते रहेगा, फिर मृदंग करताल भी कंफ्यूज हो जाए, क्या कौन सा भी बीट करो, क्या होगा, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। और मृदंग वाले करताल देखेंगे कीर्तनिया को, वो भी देख रहा है, वो अलग से गा रहा है, ये सब चीजें, एंड ऑडियंस उसे देख रही है, क्या सर्कस चल रहा है, राइट? दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। अभी प्रॉपर से वी हैव टू प्रॉपरली, द कीर्तन सिंगर है प्रॉपरली अपना ट्यून करना है, एंड इट आल्सो टेल द डिवोटीज हु आर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? एंड सम कीर्तन ट्यून व्हिच इज कनेक्टेड टू कृष्णा, मतलब प्रॉपरली सिंपल हो। क्विकली आई टेक, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम थोड़ा और इलैबोरेट करूंगी। दिस से all devotees should enthusiastically sing in chorus. कोरस में करना है, अभी सिंगर मेन सिंगर ने किया, बाकी ने कोरस में रिपीट करना है। हमें सिंगर के साथ नहीं बोलना चाहिए, जब सिंगर बोलेंगे तो ही, अदरवाइज वी शुड बी सिंगिंग इन कोरस। द मेन सिंगर शुड बी सिंगिंग इन कोरस में। All devotees should follow the same melody that the lead singer is singing. क्या? बिकॉज वो एक गाएगा, जैसे वो क्यों होता है, क्योंकि हम अलग अलग करेंगे ना, वो नहीं आएगा बाकी लोग। अगर हाई ट्यून में किया फिर बाकी सब अपना अपना ट्यून करेंगे, और इमेजिन 100 लोगों की 100 ट्यून हो जाएंगी तो क्या होगा फिर, राइट? डेंजर ना, तो इसलिए सिंपल रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डांसिंग कीर्तन भी कर रहे हैं तो ऐसा कीर्तन हो कि डांस कर पाए। डांसिंग कीर्तन के ऊपर बहुत स्लो है, बहुत ये है, तो फिर डांसिंग कीर्तन तो डिफिकल्ट हो। इसलिए हमें लर्न करना है, इस्कॉन डाल के इस्कॉन कीर्तन डांसिंग को थोड़ा देख के कैसे हमारे इसमें हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, वो देख के हमें करना है फिर। Yeah. Therefore, devotees should pay careful attention at all times. तो हमें जैसे वो हमारा attention कोरस का, मतलब कैसे सिंगर गा रहे वैसे ही हमें कीर्तन गाना है, जो उनका ट्यून है वैसे ही कोरस ने रिपीट करना है। मृदंगा and kartala players should be close to the lead singer and should watch him carefully. Very important. देखो, and adjust their speed according to his. तो जो मृदंग एंड करताल वाले हैं, अभी सपोज कीर्तनिया जो सिंगर है उन्होंने आंखें बंद के वो पे गा रहे हैं, एंड देन ये तो, और ये भी आंखें बंद करके कर रहे हैं, दे नॉट लुकिंग ओनली, तो उनका सिंक्रोनाइज, क्योंकि बीच में फास्ट जाएगा ना, तो सिंगर शुड कोऑर्डिनेट विद द इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स। तो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर शुड बी सिटिंग नेक्स्ट टू द सिंगर, एंड उन्होंने वो हमेशा उनको सिंगर को देखना चाहिए, उन्होंने वॉच रखते रहना है कि वो क्या कर रहे हैं, फास्ट बोल रहे हैं बजाने के लिए, स्लो बोल रहे हैं स्टॉप करने के लिए, क्या कर रहे हैं, तो वो हमें देखना चाहिए। That we have to be seen, right? Therefore, the kartala and mridanga player should be extra attentive. तो वो ज्यादा अटेंटिव होना चाहिए। तो ये अभी इन्होंने स्लो किया और ये तो अपने बजा ही रहे, फास्ट बजा रहे हैं, राइट? तो वो नहीं होना चाहिए।
The general pattern of the morning kirtan should be Samsara Dhavanal prayers, Panchatattva prayers, Hare Krishna Mahamantra, and Hari Haraya Nama Krishna. ये भी हम करते हैं ना संसार हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः. ये हम लाइंस में एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं. देन वी प्ले दिस, वी डांस ना दिस. महाप्रभु from पंचतत्व they used to play डांस लाइक दिस विद दिस. एक तो हरे कृष्णा कीर्तन में डांस करते थे और दूसरा इसमें ओके हरि हराय में डांस करते थे. इसलिए हम भी डांस करते थे. ब्यूटीफुल. तो हमें डांस करना है, वो सीखना भी है वैसे. So we'll stop now. Just last two statements. Where there are two or more kartal players, they must play in harmony. Similarly for mridanga players. So अगर दो है ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो उन्होंने सिंक्रोनाइज होना. इनका फास्ट चल रहा है करताल, इनका स्लो चल रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए. और ऐसा सेट कि करताल एंड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर शुड बी लुकिंग एट द सिंगर. देखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो इसका अलग होगा तो फिर डांट के फिर ये करेगा. ऐसे ना झगड़ा नहीं दिखाना चाहिए हमें लोगों को. वी शुड बी वेरी नाइसली बिकॉज हरे कृष्ण महामंत्र गिव्स प्लेजर टू कृष्णा ना, तो हमें वो उसका ध्यान रखना चाहिए. हाँ, तो अच्छे से करना है. कीर्तन शुड बी स्वीट एंड मेलोडियस एंड नॉट सिंपली लाउड. ओके, जो कीर्तन है वो स्वीट एंड मेलोडियस होना चाहिए. एकदम बड़ा आवाज सुनाई नहीं दे रहा, एकदम बजा रहे बड़ा बड़ा आवाज से, बट वर्ड्स ही नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए. सिंपल एंड लाउड मेलोडियस होना चाहिए. बहुत बड़े आवाज से नहीं करना चाहिए. यस, या, so that's it then for today. Then next week we will take for dancing and थोड़ा और कीर्तन के बारे में. कीर्तन as I said is a big responsibility, honor. तो हम कीर्तन जो गा रहे हैं उन्होंने प्रॉपर वैष्णव एटिकेट का, उन्होंने जो उनका क्लोथ्स है, ड्रेस, वो करना चाहिए. ओके, जैसे लेक्चर देते हैं स्पीकर, उन्होंने ख्याल रखना चाहिए उनके वेशभूषा कैसे हो. सेम थिंग फॉर सिंगर, कीर्तनिया जो गा रहे हैं, और इवन फॉर प्लेयर्स, दे शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपना वैष्णव परिधान क्लोथ्स करे प्रॉपरली. या इट इज नॉट लेस देन स्पीकर है और कीर्तनिया कम है, नहीं. इट इज टेकिंग अस टू कृष्णा. And one thing important we have to, the Kirtaniya should be always taken care कि वो जो गा रहे this Kirtan is not to please the audience, but it is for pleasure of Shri Guru and Gauranga. कृष्णा के लिए कर रहे हैं, वो ध्यान में रख के हमें करना है. Yes, so thank you very very much. Let's meet next week Thursday hopefully. And let's offer Vaishnav Pranam. I post that if any questions there, you can ask or you can message later. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Anant koti Vaishnav bhakta vrinda ki jai, Vaishnav Thakur ji ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much. Hare Krishna.